Well, in today's video, you will know about melting. Okay, melting is a change when a solid converts into liquid state. For example, आप ice को melt होता हुआ observe करते हैं. As likewise, you have a lump of butter, and when you heat it, it converts into liquid form. So, what are different changes which are taking place at particles level? We will be talking about those changes today. Melting is a change when solid converts into liquid state by heating. Okay, और वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर मेल्टिंग होती है, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड द मेल्टिंग पॉइंट. लाइक आइस का मेल्टिंग पॉइंट इज 0 डिग्री सेल्सियस. सोडियम क्लोराइड मेल्ट्स एट 801 डिग्री सेल्सियस. हर एक अलग अलग होता है. इट डिपेंड्स अपॉन द अट्रैक्टिव फोर्सेस. जिसकी अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रांग होंगी उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, जिसकी अट्रैक्टिव फोर्सेस वीक होंगी उसका मेल्टिंग पॉइंट लो होगा. ओके, नाउ व्हाट हैपेंस व्हेन a substance melts, when solid converts into liquid form? When you heat a liquid, when you heat a solid, the kinetic energy of the particles increases. Solid के अंदर kinetic energy कौन सी होती है? The particles are just vibrating at their fixed position. But when you heat them, their kinetic energy increases. They increases. And there is also force of attraction between the particles. So एक competition हो रहा है किसमें? Kinetic energy में और force of attraction के अंदर. You are heating and heating. A time will come when the kinetic energy of the particles will overcome the attractive forces. ठीक है? And when kinetic energy overcomes the attractive forces, particle will start moving away from each other, and the whole structure will collapse and solid will convert into liquid state. So आपको ये बातें लिखनी है एग्जाम के अंदर. If examiner says के what are different changes at particles level when a solid converts into liquid form, तो आप क्या कहेंगे? नंबर 1, when heated kinetic energy increases, particles start moving faster. When kinetic energy of the particles overcome the attractive forces, particles move away from each other and solid converts into liquid state. या melting में लिखेंगे. Likewise, what is boiling? Boiling थोड़े से आगे जाके आ जाता है. When a liquid converts into gas form at a particular temperature. ठीक है? Like पानी एक specific temperature पे जाके boil होगा और कितने पे होगा? 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर. ठीक है, अगर प्योर है, 100% प्योर है. तो मैंने आपको बताया था पीछे प्रीवियस वीडियो में हमने ये बात डिस्कस की हुई है कि इम्प्योर लिक्विड्स का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाता है. बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इम्प्योर लिक्विड इंक्रीजेस फ्रॉम देयर एक्चुअल बॉइलिंग पॉइंट. So boiling is a stage when liquid converts into gas form at a specific temperature. कैसे होता है? आप देखेंगे लिक्विड है, आप लिक्विड को हीट कर रहे हैं. सो बाय हीटिंग काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इंक्रीजेज एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीकर होती जा रही है. अगेन अ टाइम व्हेन काइनेटिक एनर्जी ओवरकम्स द अट्रैक्टिव फोर्सेस. जब अट्रैक्टिव इतनी काइनेटिक एनर्जी इतनी ज्यादा हो जाती है कि उसके मुकाबला में अट्रैक्टिव फोर्सेस कुछ नहीं काम कर पाती. पार्टिकल्स स्टार्ट लीविंग ईच अदर एंड दे कन्वर्ट फ्रॉम लिक्विड टू गैस फॉर्म. सो इन शॉर्ट आप क्या लिखेंगे? नंबर 1, व्हेन हीटेड काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस, पार्टिकल्स मूव फास्टर. व्हेन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स overcome the attractive forces, particles leave each other and they go into upper atmosphere. They convert from liquid to gas form. Okay, there is also a phenomenon which you can see everywhere in your surrounding, that is evaporation. Evaporation is also conversion of liquid to gas form. तो फिर डिफरेंस क्या है बॉइलिंग और इवेपोरेशन के अंदर? वेल, evaporation और boiling दोनों के अंदर ही liquid converts into gas form, but boiling takes place at a specific temperature while evaporation
is taking place at any temperature, even 0 डिग्री पे भी evaporation हो रही होती है. जो evaporation है ना, evaporation is a surface phenomena, सिर्फ upper surface से particles evaporate होते हैं. But boiling is taking place throughout the liquid, नीचे से ऊपर, ऊपर से हर तरफ पानी के मॉलिक्यूल आप देखेंगे मूव कर रहे होंगे. ठीक है. So number 1, boiling takes place at a specific temperature. evaporation किसी भी टेम्परेचर पे हो सकती है. evaporation surface phenomena है. boiling throughout the liquid होती है. evaporation is a slow and continuous process, but boiling is a fast process. ठीक है. ये डिफरेंस भी आपको एग्जाम में लिखने को आ सकते हैं. Now look at the changes when what are different process taking place while melting and boiling. Look at the movement of the kinetic movement of the particles while you are heating. So they are converted into liquid form, and then look at it, they are converting into gas form, और वो सारे उड़कर तो वहां से चले जाएंगे. Okay. This whole process can be represented in the form of heating curve. देखो what is heating curve? हमने पूरे टेम्परेचर को ग्राफ की फॉर्म में एक्सप्रेस किया है. At the start you have a solid, suppose its temperature is 25 degrees Celsius. ठीक है. So when you are heating, the temperature of solid is increasing, and at a stage will come when the temperature will become constant. ठीक है. कुछ देर के लिए टेम्परेचर चेंज नहीं होगा. Even you are continuously heating the substance, even then टेम्परेचर कांस्टेंट होगा. ठीक है. ये जो टेम्परेचर कांस्टेंट होगा ना, इस ड्यूरेशन में सॉलिड इज कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड फॉर्म. ये उसका मेल्टिंग पॉइंट. अच्छा, एक स्टेज आएगी सब लिक्विड बन चुका होगा, देन इट विल स्टार्ट, टेम्परेचर विल स्टार्ट इंक्रीजिंग. अब लिक्विड बन चुका है, लिक्विड का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीजिंग, एंड अ स्टेज विल कम व्हेन अगेन द टेम्परेचर विल बिकम कांस्टेंट. और वो जो है वहां पे क्या हो रहा होगा, वहां पे लिक्विड बॉयल हो रहा होगा, गैस बन रही होगी. ठीक है. सो फर्स्ट स्टेज व्हेन योर ग्राफ बिकम्स कांस्टेंट, दैट इज द मेल्टिंग पॉइंट. और उसके बाद में जो आता है आपका, जो स्ट्रेट लाइन आ जाती है, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट. अच्छा, एग्जामिनर्स विल से कि ऐसा क्यों होता है, why temperature becomes constant during melting and boiling, even you are continuously heating your substance. तो वो हीट कहाँ जा रही है, वो एनर्जी कहाँ जा रही है. सो वो जो आप उस ड्यूरेशन में वो टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, लेकिन हीट कहाँ जा रही है, टेम्परेचर इंक्रीज क्यों नहीं हो रहा, बिकॉज दैट हीट इज बीइंग यूज्ड टू overcome the attractive forces and change the state of the matter. सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने में हीट यूज हुई. और फिर अगेन जब दोबारा बॉइलिंग पॉइंट पे जब टेम्परेचर कांस्टेंट हुआ है, तो उस वक्त जो हीट है दैट वाज बीइंग यूज्ड टू कन्वर्ट लिक्विड इनटू गैस फॉर्म. वो फोर्सेस को तोड़ने में हीट यूज हो रही होती है. ठीक है. सो दिस हीटिंग कर्व is also very important from examination point of view. बड़े क्वेश्चन इससे आते हैं, एमसीक्यूज में भी आते हैं, स्ट्रक्चर क्वेश्चन के अंदर भी आते हैं. इसका जो रिवर्स है, द रिवर्स ऑफ दैट इज कूलिंग कर्व. अब आपके पास एक गैस है और गैस को आप कूल कर रहे हैं, ठंडा कर रहे हैं. सो क्या हो रहा है कि गैस इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, कंडेंसेशन हो रही है. देखो आप, हीटिंग कर्व का जो रिवर्स है दैट इज कॉल्ड द कूलिंग कर्व. कूलिंग कर्व में वी रिवर्स द होल प्रोसेस. लाइक we have gas at the start, और it is at high temperature 200 डिग्री सेल्सियस पे गैस है. अब हम इसको गर्म कर रहे हैं. ठीक है. इसको हम कूल कर रहे हैं. द गैस इज बीइंग कूल्ड, और a stage will come when the temperature will become constant. क्यों कांस्टेंट हो गया, बिकॉज अब क्या हो रहा है, अब गैस कंडेंस हो रही है और गैस कन्वर्ट हो रही है लिक्विड फॉर्म के अंदर. ओके. तो ये एक्चुअली गैस का बॉइलिंग पॉइंट है. रिवर्स करते हुए ये गैस का बॉइलिंग पॉइंट है. अच्छा, हम देखें कि गैस लिक्विड बन गई और एक से जाएगा, होल गैस हैज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड फॉर्म. ठीक है. अब क्या हो रहा है, अब टेम्परेचर इज नाउ डिक्रीजिंग. अब वो जो लिक्विड बन गया था, उस लिक्विड का टेम्परेचर कम हो रहा है, और अगेन द टेम्परेचर विल बिकम कांस्टेंट. और वो कांस्टेंट होके क्या हो रहा है, अब वो लिक्विड फ्रीज हो रहा है, वो लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है. ठीक है. ये उसका मेल्टिंग पॉइंट है या फ्रीजिंग पॉइंट उसका कह सकते हैं आप. और अगेन व्हेन the whole substance is converted into solid form, then the temperature of solid will start decreasing. ठीक है. और अब देखें एंड पे, अब जो आप E to F देखो, तो E to F पे क्या है, E to F के अंदर
वो ही सॉलिड जो है उसका टेम्परेचर डिक्रीज होके इट विल कम एट द रूम टेम्परेचर। वेल कुछ क्वेश्चन जो हीटिंग एंड कूलिंग कर्व या मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड एग्जाम्स में आ सकते हैं वो क्या है। लुक एट दिस टेबल, melting point is 180 and boiling point is 1200 degree Celsius। तो एग्जामिनर कहेगा कि what is its condition, what is its state at room temperature। so room temperature पे obviously ये क्या होगा, ये solid होगा, because इसने तो liquid में ही 180 पे जाके convert होना है, तो 180 से पहले ये क्या होगा, ये solid होगा। अच्छा फिर एग्जामिनर says कि what is the state of this substance at 500 डिग्री सेल्सियस। तो 500 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, 180 पे ये लिक्विड बन चुका हुआ है और इसने 1200 पे जाके गैस बनना है। सो 500 इज इन बिटवीन मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, सो 500 पे ये लिक्विड होगा। नेक्स्ट अब देखो कि सब्सटेंस हैज मेल्टिंग पॉइंट -20 डिग्री सेल्सियस एंड इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज 150 डिग्री सेल्सियस। -20 पे ही मेल्ट हो चुका है, सो 25 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर पे ये लिक्विड होगा, ठीक है। एंड गैसेस आप देखें, गैसेस हैज बोथ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इन नेगेटिव, ठीक है, क्योंकि अब गैस रूम टेम्परेचर पे वो गैस है तो कूल करने पे वो लिक्विड बनेगी और फिर और कूल करने पे वो सॉलिड बनेगी। सो गैसेस का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही नेगेटिव में आपको मिलेंगे। सो इफ अ सब्सटेंस हैज मेल्टिंग पॉइंट -120 डिग्री सेल्सियस and its boiling point is -80 degree Celsius, then it is gas at room temperature, because -80 पे ही वो गैस बन चुकी है, वो बॉयल हो चुका है, तो आगे 25 डिग्री पे तो ऑब्वियसली वो गैस ही होगा। अच्छा, एज आई डिस्कस्ड अर्लियर विद यू के melting and boiling point is a test for purity of a substance। like जो melting point होता है ना, pure substances have sharp melting and boiling points, but if a substance is impure then its melting point will decrease, but if it is a liquid, ठीक है, for example पानी है, पानी के अंदर थोड़ा सा salt dissolve कर दे तो it will boil at 106-107 डिग्री सेल्सियस। so pure substances का melting और boiling point बहुत sharp होता है, ठीक है, लेकिन अगर इम्प्योर हो जाए तो उसका मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेस एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस, ठीक है। लाइक हमारे टैप वाटर है, टैप वाटर मोस्टली बॉयल हो रहा होता है 110 डिग्री के अराउंड या 7-8 पे जाके, ठीक है। तो जो आपने वो मेल्टिंग पॉइंट वाली हीटिंग कर्व के अंदर जो आपने कर्व देखी थी वो इतनी शार्प नहीं होगी, वो थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी होगी, ओके। बट इज सब्लिमेशन अनदर चेंज, जैसे आप देखें कि सॉलिड टू लिक्विड इज मेल्टिंग, liquid to gas is evaporation, but what is sublimation? Sublimation is conversion of solid to gas directly without passing through liquid state। आप एक सब्सटेंस है सॉलिड, उसको गर्म करें और वो डायरेक्ट गैस बन जाए तो हम कहेंगे कि इट इज सब्लाइम, या गैस से वापस सॉलिड में भी आ जाए तो भी सब्लिमेशन ही कहेंगे उसको, ओके। सो सब्लिमेशन इज अ फिनोमेना इन विच solid directly converts from solid to gas form without passing through liquid state, okay। Like you have seen this in your life so many times, like आप ये देखें कि रेफ्रिजरेटर आप इसको जब ओपन करते हैं तो इसके अंदर ड्राई आइस है, वो ड्राई आइस जो है वो सॉलिड से डायरेक्ट गैस फॉर्म में बाहर जा रही है। सो दिस इज सब्लिमेशन। आइसक्रीम बेचने जो आ रहे हैं, आइसक्रीम वालों के कंटेनर के अंदर आप देखें तो जब वो खोलते हैं तो अंदर से गैस निकलती है एंड दैट गैस इज एक्चुअली ड्राई आइस कन्वर्टिंग फ्रॉम सॉलिड टू गैस फॉर्म। देखें ये एक और फिनोमेना आप देखें, इसके अंदर भी आप देखेंगे जब इसके अंदर आप कुछ ऐड करते हैं तो ये गैस में चली जाती है, ओके। होप यू गॉट दिस। इफ यू like the content then do like, share and subscribe our channel।